Hello everyone, welcome back. Myself Anup, and today we are going to discuss on topic inductive effect as well as bond cleavage. There we are going to cover two topics today, that are inductive effect and bond cleavage. So before going ahead today, I want to tell you something about our channel. uh, this is a channel created by Moksh Sharma, and do join our WhatsApp and Telegram group. There's a WhatsApp and Telegram group of our in which we regularly give quizzes and gives give information about the competitive exams that are going on. So do join our channel. So we will go ahead today, and the topics that I cover today are the bond cleavage, inductive effect, that is plus I, inductive effect of minus I, and questions based on the plus and minus I. First of all, we will discuss about cleavage. Basically, what is cleavage? Cleavage means breaking, टूटना. जिसे हम एक टूटना बोलते हैं उसको हम क्लीवेज बोलते हैं. तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खाली दो चीज होती है, बॉन्ड क्लीवेज होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. यानी बॉन्ड्स टूटते हैं, बॉन्ड दे ब्रेक डाउन, and then reaction in presence of the catalyst happen, and the another new bond is formed, means a compound is formed, that is bond cleavage and bond formation. The whole organic chemistry, these two processes are done. It looks so simple. If we take a overview what happens in the whole organic chemistry, it's look quite simple, but going deep, it makes it makes us curious, and the topic become tough and tougher if we don't understand the basic things. So first of all, what is bond cleavage? There are two types of bond cleavage: homolytic cleavage and heterolytic cleavage. So first of all, I'll discuss about what is homolytic cleavage. So let me take a slide, an extra slide, to explain what is homolytic cleavage. Let me take an example, like uh, A and B. There is a covalent bond between A and B. Okay, so sorry, A and B में bond बना है. Okay, इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड, और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है. ए का इलेक्ट्रॉन है और बी का इलेक्ट्रॉन है. सो जब बॉन्ड टूटता है, when there is a bond cleavage between the both, A takes its own electron, okay, and B takes its own electron, and these electrons are known as the free radicals. These are known as free radicals. So basically, what is homolytic cleavage is when a bond breaks and the respective elements take their respective electrons. So that type of bond is known as homolytic bond cleavage. So that's the basic of the homolytic bond cleavage. I have written the definition that would you write in your notes. So what is the definition? Let me discuss it. When bond breaks, respective atoms take their respective one electron that they have shared. Okay, means when the bond breaks, the bond टूटता है, तो जो respective atoms होते हैं वो अपने respective electrons ले लेते हैं to form the free radicals. Okay, what were the free radicals? That is, we represent it in this form. Is the a small dot on that, it represent that they have their own respective electron, one electron that they have shared in that bond formation. Okay, so first of all, what are the basics of homolytic cleavage? How you identify them is there should be no catalyst, or no polar. They do not carry a polar charge. What if they carry a polar charge? That cleavage would not be the homolytic cleavage. That will be the heterolytic cleavage. That I will discuss later. And uh, what are the characteristics of the bond cleavage, oh sorry, homolytic cleavage, is that energy is required.
ओके, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इट इज दैट ये एनर्जी, जब तक हम एनर्जी देंगे नहीं तब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं. सो दैट्स द बेसिक थिंग, दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ब्रेकिंग ऑफ इट. एंड in what phase the homolytic cleavage take place, which phases means like homolytic cleavage always takes place in the gas phase, means टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा वेपराइज फॉर्म में होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए. ठीक, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हो गए जैसे कि हमारे CCl4 हो गए, ये सब हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं. ओके, कैटेलाइज्ड UV या HNu करके जो भी आए, मीन्स जैसे ए बी में ये हमारा HNu पड़ गया, तो दिस विल ऑलवेज फॉर्म अ होमोलाइटिक क्लीवेज. दोनों के पास अपने अपने फ्री रेडिकल आएंगे, HNu, अल्ट्रावायलेट रेज. तो जितने भी लाइट में इफ एनी क्लीवेज टेक प्लेस, दैट इज नोन एज होमोलाइटिक क्लीवेज. दैट्स इट. एंड वन मोर पॉइंट, इफ द रेडिकल्स आर यूज्ड for breaking the bond, that is also the homolytic cleavage, because the free radicals don't carry any charge. means आप देखते हो कि इसमें जो इसका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन था वो ए ने ले लिया, ए का रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन ए ने लिया, बी का बी ने लिया, तो कोई चार्ज इस पे आया नहीं, न इस वाले एटम पे न इस वाले एटम पे. तो जो चार्ज नहीं आया बट उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं. तो अगर फ्री रेडिकल भी रहा तो दैट टाइप ऑफ क्लीवेज इज नोन एज होमोलाइटिक क्लीवेज. okay, so these are the points that you should have in your notes, so that you can revise in future. So now I'll discuss about heterolytic cleavage. What is basically heterolytic cleavage? So let me take another page for it. So heterolytic cleavage are basically if a bond between two atoms are formed, and B being more electronegative, and the when energy is given when the bond breaks, so the B being more electronegative takes its own electron as well as the electron that is shared from the A atom. मतलब कि जो B है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, मीन्स दैट दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ. सो B ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक खुद का ले लिया और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसलिए इस पे आ जाएगा -1 का चार्ज. एंड ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इस पे आएगा +1 का चार्ज. सो ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ एनी बॉन्ड, if the respective atoms are having the charge on them, is known as the heterolytic cleavage. I am having the definition of the heterolytic cleavage also. If a charge appears in breakdown of the molecule, then the cleavage is heterolytic. Okay, means अगर चार्ज आया, जैसे HCl हम लेते हैं तो Cl पे माइनस चार्ज आता है, तो अब से HCl का जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो होगा हेट्रोलाइटिक. अब इसका भाई कौन से अकर मतलब किसके प्रेजेंस में अकर होता है, मीन्स अगर जहाँ आपने आयरन देख लिया दो एटम पे, मीन्स दैट क्लीवेज इज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज. यानी जब वो बॉन्ड टूटा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था उसने अपना साथी का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया. और जनरली ये होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, ओके, जिन पे पोलैरिटी आती है. जो मोर पोलर होते हैं वो भी जो एक सेकेंड में आपको समझाता हूँ. जैसे कि B ज़्यादा पोलर है, तो जब B बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये देखिए ए बी के बीच में बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड है. तो जब बॉन्ड टूटता है तो B पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज.
ये पोलर में इसने भी इसमें दो रेडिकल मतलब दो रेडिकल्स बोल रहा हूँ, दो इलेक्ट्रॉन्स इसने ए का भी ले लिया और बी के पास जो खुद का था और उसने भी ए का भी ले लिया। तो ये जो क्लीवेज हुआ पोलैरिटी में, पोलैरिटी अगर पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। ठीक, अगर आपने आयंस देख लिया पोलर मॉलिक्यूल्स हैं देन द बॉन्ड क्लीवेज इज हेट्रोलाइटिक। अगर नॉन पोलर हुए और उन पे आयंस नहीं हुआ देन द क्लीवेज इज homolytic cleavage. Now the most important point is catalysts are more important than the nature of molecule. समझे आप लोग? मीन्स अगर कैटलिस्ट जो होता है, जैसे हमने यूवी लाइट एक कैटलिस्ट के तौर पे हमने हमने एक क्लीवेज कराया। ठीक, आपने अगर देखा कि भाई लाइट पास हो रही है उस क्लीवेज मीन्स उस बॉन्ड पे, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने लाइट का यूज़ किया, हाई टेम्परेचर किया, तो आपने कैटलिस्ट देखा कि भाई हाई टेम्परेचर है, यूवी लाइट पास हो रहा है, तो आपको फटाक से होमोलाइटिक क्लीवेज लिख देने का। ठीक, नहीं सोचना है। मीन्स कैटलिस्ट आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड एक पॉइंट छूट गया, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के भी प्रेजेंस में होता है, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो इनके ये जब कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं तो इनसे जो बॉन्ड क्लीवेज होता है दैट आर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो both in homolytic cleavage and heterolytic cleavage, then you may ask, you may join our group and post your doubt on that. Okay, now we'll move further with inductive effect. Okay, so inductive effect से जाने से पहले let me again tell you what are polar and non polar bonds, क्योंकि ये बहुत important है, polar and non polar bonds. सो पोलर एक है और एक नॉन पोलर, एनपी में डिनोट कर देते लाइक। अब आप एक एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लो कि एक ए और ए दो एटम है, दिस आर द टू एटम्स, ए लाइन उनके बीच की बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ इज जनरली डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ टू एटम्स। ओके, अब इसमें इनका जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है वो आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटर में हुआ है। ओके, दो सेम टाइप के हमने एटम लिए, मान लो ए को मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी बोल सकता हूँ। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है वो सेंटर में हुआ है। लेट मी टेक एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डाल देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बी। ओके, तो जो बी है उसका इलेक्ट्रॉन मैं डाउनवर्ड से डिनोट करता हूँ और ए का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मान लो ए के पास प्रोटॉन्स 10 हैं, बी के पास 20 है, तो इसके पास ज़्यादा प्रोटॉन होने से ए के इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करेगा तो ए का इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जाएगा। सी अगर कंप्लीटली बी की तरफ चला जाए तो हम उस पर माइनस चार्ज डाल देते हैं, ठीक, और ए पे प्लस आ जाता है। बट हम कह सकते हैं कि ये एटम है, ठीक, इस पे इलेक्ट्रॉन आना है और बट दूर से ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है दूर से, तो यानी कि पार्शियल नेगेटिव हम बोल सकते हैं। मीन्स फुल्ली नहीं हुआ है, फुल्ली उसकी तरफ नहीं गया, इट्स जस्ट पार्शियल, पार्शियली आया। और आप देखेंगे कि बोथ ए एंड बी में डिफरेंस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बी की तरफ हुआ है ज़्यादा, यहाँ पे सेंटर में हुआ है। ओके, बी की तरफ ज़्यादा हुआ है और पार्शियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो लेता है विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर हमेशा माइनस चार्ज आता है एंड द डोनर इज ऑलवेज पॉजिटिव, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। ओके, तो आई विल मार्क दिस एज पार्शियल नेगेटिव एंड इट्स जस्ट अ पार्शियल पॉजिटिव। सो नॉन पोलर क्या हुआ कि भाई जिसमें पोलैरिटी आई नहीं, इससे हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जा रहा है, जो पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव बी पे बना है, उसको हम बोलते हैं पोलराइज हो रहा है, दैट इलेक्ट्रॉन इज बीइंग पोलराइज्ड एट बी, दैट इज आल्सो नोन एज पोलराइजेशन। बट ए
जो हम पहला लिए हैं सेम एटम्स, उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने में शेयर हो रहे हैं, सेंटर में शेयर हो रहे हैं, इसका चार्ज बराबर है, उसका चार्ज है। दैट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर नोन एज नॉन पोलर, जिसमें पोलैरिटी बिल्कुल नहीं है। एंड ड्यू टू द बी बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, a partial charge has been generated on the B, so that type of bond, okay, are known as polar. These are known as polar bonds. Okay, तो नॉन पोलर और पोलर इंडक्टिव इफेक्ट से पहले पढ़ाने का रीज़न है बिकॉज इसी के बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट आप कह सकते हो पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स आर द बेस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर. So inductive effects are also of two types, okay, plus I and minus I. There are many compounds that shows plus I, and there are many which shows minus I. Now let me take a carbon atom and एक X electron acceptor, okay, means जो electron attract करेगा X हम ले लेते हैं, मान लेते हैं. तो जो प्लस में है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एक्स की तरफ जा रहा है, तो एक्स पे पार्शियल चार्ज पड़ा, पार्शियल नेगेटिव सॉरी, एंड सी गेन्स द पार्शियल पॉजिटिव. ओके, सो ये जो हमने ग्रुप ऐड किया एक्स, ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, मतलब कार्बन कंपाउंड जो होगा, जो भी कार्बन कंपाउंड होगा उसमें अगर हमने एक्स जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप जो लगाया है, किसी भी कार्बन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप लगाया है, तो जो इलेक्ट्रॉन उसमें से विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो उस ग्रुप को हम माइनस आई, यानी कि उस ग्रुप के पास जो चार्ज है वो माइनस आई हो जाता है, यानी कि वो इंडक्टिव इफेक्ट खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई से डिनोट करते हैं. एंड वन मोर पॉइंट आई हैव टू ऐड इज दैट द माइनस आई ग्रुप्स एंड द प्लस आई ग्रुप्स आर वैलिड फॉर द कार्बन ओनली. मतलब वो कार्बन ग्रुप्स यानी कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन अटैच्ड है, प्लस एंड माइनस आई इफेक्ट आर वैलिड फॉर देम. ओके, so let me revise again what is the minus I effect. Is that a carbon group, when an electron acceptor group is added to a carbon compound, so the electron acceptor group attracts the shared electron of the carbon compound, so that types of group are known as minus I group. Okay, you may rewind it and note down the definition of the minus I, and I will if you haven't noted it, I will provide it you later on. Let me get it on to the plus I effect. What is plus I? Sorry, it's 1 second, wait a second. Plus I is there, mismatch a little bit of, so plus I. Now one more thing one more thing in minus I is that, let me take a new page. As we move away from the electron acceptor group, okay, the positive charge increase. Like example, 3 carbon atoms are attached to the X. Okay, so C will have partial 1. Okay, C will have the partial 1, and then C, the middle one, will have, मीन्स जैसे जैसे हम X से दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करने की क्षमता उसकी कम होती जाएगी, एंड एट लास्ट ट्रिपल पार्शियल 1. ओके, तो जो तीसरा रहेगा इस पे नेग्लिजिबल एक्स की जो इफेक्ट रहेगी, इट विल मैक्स सबसे ज़्यादा इस पे रहेगी, फिर सेकेंड वाले पे रहेगी, एंड यू कैन से दैट ऑन थर्ड कार्बन इट विल बी ए नेग्लिजिबल.
मीन्स जैसे जैसे एक्स से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे जो इसका जो इफेक्ट रहेगा एक्स का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का वो कम होता जाएगा. Okay, this was one of the important point that I missed. Now on plus I. So plus I effect is due to like एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि कार्बन एटम में कोई Y ग्रुप ऐड कर दे तो Y इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन को. मीन्स जैसे कार्बन को कार्बन कंपाउंड जो है कार्बन ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको एंड कोई वाई ग्रुप में मैं लगा दूं विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू इट. तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक ऐसे ऐसे. ओके सो द ग्रुप्स that are attached to the carbon which donates its electron to the carbon, okay, while during any reaction, so the groups that donates the electron are denoted with plus I charge, means plus I inductive effect. Okay, plus I effect also decreases as we go away from y. भाई y से जितना दूर जाते जाएंगे प्लस I कम होता जाएगा. मीन्स इस पे प्लस I कार्बन पे फर्स्ट कार्बन पे प्लस आई बहुत ज़्यादा रहेगा, सेकेंड वाले पे थोड़ा कम, थर्ड वाले पे यू कैन से नेग्लिजिबल मीन्स नहीं पता चलेगा. और ये गिने चुने कंपाउंड्स हैं, सॉरी गिने चुने प्लस आई इफेक्ट जो शो करते हैं जब कार्बन से अटैच्ड होते हैं, गिने चुने आप इनको याद कर लो. यू मे रिमेंबर दैट. एंड इन द माइनस आई ये जो ऑर्डर है ये आपको याद रखना पड़ेगा. ओके मीन्स यू मे रिमेंबर द माइनस आई सॉरी द प्लस आई 5-6 हैं गिने चुने, उनको याद कर लीजिए. उनको छोड़ के जितने भी आए NH+3 NO2 एंड फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं वो सब माइनस आई दिखाएंगे. कुछ ही है जो प्लस आई दिखाएंगे. तो प्लस आई को याद कर लीजिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा. माइनस आई काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लेने वाले सभी होते हैं. माइनस आई का इफेक्ट मतलब माइनस आई मैक्सिमम कंपाउंड्स या एटम्स शो करते हैं. ओके सो दिस वाज द व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइनस एंड प्लस आई दैट इट एक्सेप्ट्स वन डोनेट्स. ओके दोनों में है कि भाई जितना दूर दोनों से जाएंगे y से और x से जो उनका रिस्पेक्टिव माइनस एंड प्लस आई चार्ज होगा दैट विल डिक्रीज. ओके एंड these are the orders and some compound name that shows minus I effect. You have to remember them, it's important. Now we will discuss the features of inductive effect. पहला फीचर क्या है कि परमानेंट इफेक्ट इन मॉलिक्यूल और आयन शो करता है. मीन्स एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ. इसके पहले एक और चीज फीचर से पहले एक आता है इसका एप्लीकेशन. एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ कि स्टेबिलिटी जो मेन इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन है वो सब बेस्ड है स्टेबिलिटी पे कि भाई पूरे यूनिवर्स में एवरीथिंग इज स्टेबल. तो इंडक्टिव इफेक्ट से जब चार्ज डिसबैलेंस होता है तो मीन्स उसकी स्टेबिलिटी पे कुछ ना कुछ फर्क आता होगा. तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि एक कार्बन है और एक कार्बन C+ है, विच वन इज मोस्ट स्टेबल, विच वन इज मोस्ट स्टेबल. आप अपने रिस्पेक्टिव आंसर सोच लीजिए. मैं बता देता हूँ इसका कि C+ इज नॉट मोर स्टेबल. ओके मीन्स आप इतना याद रखिए चार्ज बढ़ेगा प्लस या माइनस कुछ भी हो, इफ द चार्ज इंक्रीजेस स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. तो इसमें C ज़्यादा स्टेबल होगा C+ से. और C- और C+ में विच वन विल बी मोर स्टेबल, विच वन विल बी मोर स्टेबल. C- C+ में विच वन विल बी मोर स्टेबल. आप अपने रिस्पेक्टिव आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. ओके नाउ
एक रिलेशन है, वो एक रिलेशन है बस स्टेबिलिटी पे, कि S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ओके, ये आप याद कर लीजिएगा, दैट S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज बढ़ेगा S कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी चार्ज कम होगा। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक बढ़ता है एक घटता है। ओके, सो फीचर से पहले ये इंपॉर्टेंट था। अब हम फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स इसके में 5 है, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फीचर्स हैं कि परमानेंट इफेक्ट इन द मॉलिक्यूल और आयन शो करता है कि भाई जो मॉलिक्यूल है वो प्लस आई शो कर रहा है, यानी जो उसका चार्ज है उसका जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉन लेना एक्सेप्टर है या डोनेटर, तो उस पर जो प्लस आई माइनस आई का इफेक्ट पड़ता है तो उस परमानेंट इफेक्ट रहता है मॉलिक्यूलर आयन पे, तो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये एक फीचर्स है। ठीक, सिग्मा बॉन्ड इट ऑपरेट्स टू द सिग्मा। पाई बॉन्ड पे कभी प्लस आई माइनस आई इफेक्ट नहीं लगेगा, इट ओनली इज अप्लीकेबल फॉर द सिग्मा। ओके, पाई पे पाई बॉन्ड पे पाई बॉन्ड पे कभी सिग्मा, पाई क्या होता है, पाई साइड बाय साइड ओवरलैपिंग बॉन्ड्स जितने रहते हैं उन पे कभी आपको इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ही नहीं। ओके, ऑलवेज प्लस आई माइनस आई इफेक्ट शोज ऑन द सिग्मा, मतलब वो उन्हीं के थ्रू ऑपरेट ही करते हैं। ओके, एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स जितने अल्केन्स हो गए, कार्बन फंक्शन के मतलब कार्बन ग्रुप के जितने भी अल्केन्स हो गए सैचुरेटेड कंपाउंड, उनके थ्रू ये जनरली ऑब्जॉर्व किया जाता है। उनमें ज़्यादातर प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट लगता है। ठीक, और व्हाट इज थर्ड पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट ब्रिंग्स चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज द डाइपोल मोमेंट एंड द सॉल्युबिलिटी। डाइपोल मोमेंट इज कॉज्ड बाय द, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है पोलैरिटी आने की वजह से, कि उसका डाइपोल किसकी तरफ है, मीन्स जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम रहेगा उस पर डाइपोल मोमेंट लगेगा। ओके, और सॉल्युबिलिटी सेंस आप बोल सकते हो कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है उनकी जो सॉल्युबिलिटी हो सकती है, एंड उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है कितनी जल्दी और कितनी फास्ट, जिस रेट ऑफ रिएक्शन हम प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का एक और फीचर है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे ही इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा एप्लीकेबल होगा, ये इसका स्टैंडर्ड है, मीन्स कि आप ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा किसी और पे आपको दिखेगा ही। ओके, मतलब जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन अटैच रहता है, और जीरो इफेक्ट इज assumed for this bond. Atoms or groups which have a greater electron withdrawing capacity than hydrogen are said to have, means जिनके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ज़्यादा होगा उनके पास माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, एंड दोज हैव जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं एंड विच हैव ग्रेट पावर ऑफ रिलीजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, उन पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। सो दिस इज द फीचर ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। इफ आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टू द होमोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द प्लस आई माइनस आई फीचर्स ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, एंड सॉरी मैं क्वेश्चंस लेके नहीं आया, means if I will provide it you on the WhatsApp and Telegram group, or those who have not joined please join it. मैं questions उसमें provide कर दूंगा। Someone please remind me in the WhatsApp group or in the comment section. I'll provide it to you. So that's all for now. Thank you for watching our video. Thanks for watching. For queries the last हमने लिखा है, link will be in description, so join. Thanks for watching. Thank you.